ट्राई करेंगे ऐसा ना हो। आपने रिवीजन किया सबने? कोई डाउट? बस एक? हाँ हाँ। इसमें मैं क्या करूं, मैं थोड़ी प्रिंटर में इंक भर रहा हूं। अच्छा सर, आपसे बात नहीं करते? चलो हम बोल देंगे, देख लीजिएगा आरजू जी। बस यही वाली इशू है ना? चलिए गुड। आपको क्या लगता है? मेसोलिथिक पहले आया कि नियोलिथिक? और इसके पहले आया अपर पेलियोलिथिक? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पेंटिंग भीमवेट का। तो जब अपर पेलियोलिथिक में पेंटिंग आ गई जिसमें कलर यूज हो गए, मैंने वर्ड कलर यूज नहीं करा था पर भीमवेटका में कलर है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रीवियस नॉलेज भी हमारे पास होती है। When people of Bhimbetka were using colors in upper Paleolithic age, why do you think a civilization like Harappan civilization will not use those colors? I think I have given you answer. See, when you will go and write the exam, many times you have to deduce, many times you have to infer from the knowledge which you already have. So it is not possible to give you all knowledge in a single class, because many times it is understood that it will be there. If you think, but specifically these details will be provided in art and culture class, because what is the purpose of having different art and culture class if all these such things will be covered in this class? Okay? So it is not our concern, we are not in the chemistry class. I can give you answer, but promise me you will not ask more details. Colors are made naturally from plants. Don't ask me process. Chalo. So any more doubts? See, whenever you will study history, what is the most important thing to remember? Time frame. Keep repeating time frame. It will help you. So today first we will see megalithic culture, then we will start Vedic age. Or I will start from Vedic age because then you will have some time frame doubt. So first I will start with Vedic age. See, Vedic age we will cover from today, we will cover from 1600 BC to 1500 BC to 600 BC. Why this is Vedic age? Because Vedic literature was written during this period. What do you mean by Vedas? How many Vedas are there? 4 Vedas are there. We will read in detail in art and culture class, but just to give you difference, Rig Veda, कई जगह सोम मिलेगा, कई जगह साम वेदा, यजुर्वेदा and the oldest one is Rig Veda, and these 3 comparatively later Vedas, and Atharva Veda generally considered is last one, because this was the earliest written Veda and its time period is 1500 to 1000. Vedic age we divide into 2 parts. क्या क्या है? Early and later. Early is 1500 to 1000
and later is 1000 to 600. Why this division was made? I have told you yesterday, हर एज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. When we are dividing certain time frame into different parts, it means some specific features will be associated with these time periods. That is why we are separating it. So if we are saying this is early Vedic age, it means it should have some characteristic features which should be different from the later Vedic period. अगर नहीं होंगे तो why we are doing this? So there should be some difference. अगर आप चलो आगे पहले देखें, यहाँ तक आया समझ में? Early Vedic age में only one Veda was written. Which Veda was that? The first Veda, Rig Veda. Rest 3 Vedas were written during later Vedic period. So if we are reading about, we are trying to know about this Vedic age, our primary source, our only important source were only these books, because they did not leave much archaeological evidence for the Rig Vedic period, because they were living a nomadic life. When you live a nomadic life, you will not live at a single place for more than, you live at a single place for very less period of time. Because of the less period of time, even if you do excavation, you will first you will not find much evidence, you will not know where to excavate, it's a large area. And third, because you will not have permanent material culture. What do you mean by permanent material culture? You will not build house permanently, you will not have structures permanently, you will not have potteries lying here and there, because you will keep them moving with you. So you will not, when you excavate after 3500 years later, chances are you will not find much cultural evidence, much metallistic evidence. What time frame is written with the early 1500 BC to 1000 BC. So whenever we are studying, please come, whenever we are studying, what is the most important thing to remember? Time frame and the associated characteristic feature of that time frame. When later we will study about different dynasties, it is very easy to give time frame. Why? Because you will know specifically the date, like you know the date of birth of a person, but it is difficult to say the different cultures. Like you say which movie is releasing on which date, that you can say, but the popularity of sometimes you can't give a particular date that this become popular from this particular date, like the cultures also. So it is easy to give time to a particular dynasty, but it is difficult to give time frame to a particular culture or particular tradition, because it takes time to develop a tradition, to develop a culture, and to develop a habit. You can't say I started this habit from this particular date, something like that. लिख लिया ना? So what I was saying, so if someone will ask you what is the primary source for early Vedic period, the first topic of today's class is early Vedic period. So if somebody will ask you what is the primary resource for reading this particular period, time period 1500 BC to 1000 BC, your primary source is Rig Veda. So we only gonna analyze, we means the scholars analyze the Rig Veda and try to match the things given in Rig Veda with the archaeological evidence available. So there shall be some correlation. It is not that if something is written like we are going on Mars, they will accept is on the face value. There should be some evidence. Evidence can be in the form of some other literary evidences which are corroborating these things, or most important, if something has been found during the excavation, during the archaeological discoveries, then it is more than sure, we can be more than sure that this, yes, this thing is there. Like if some, not in Rig Veda, but in some Vedic literature, if something is written that that particular king is having big palaces, but if during the excavation we are not even finding a permanent structure of any kind, leave alone the palace, then we can say that there are less chances there is a palace of this proportion did exist. We can say that this is just a imaginatory thing, but never shut the door too tight. So we can always say till today we have not found the evidence.
If interview someone will ask you, then you will not say no, there is no evidence, there is nothing like that. You can say till today the evidence suggests. It is better to leave some room for future. If something has been found in future, then you can adjust your views, never be too rigid. So Rig Veda, so what, this is the our, हाँ बताइए, नहीं नहीं ये मैंने कब कहा, नहीं नहीं बताइए, पूछिए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट, कौन सा दोबारा, सॉरी। मैं एक जनरल बात बोला, मैं एक जनरल बात बोला, इफ somebody ask you something and answer of that thing is depended on some archaeological survey or excavation, so I was just saying कि अगर ऐसा हो तो there is a future probability ना, कि future में आप ढूंढ सकते हो, so use such thing that till today whatever has been discovered, this is the opinion, अभी तक इतना ही है करके, in that sense I was saying. जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है, यू आर ओनली इन 30th ओवर, so you can only predict, you can not give your judgment that this team will win, something like that, that till 30th over it is appearing that this team is gonna win this match, something like that. So how will we read early Vedic period? We will divide this early Vedic period in 4 different parts: economic part, social part, religious part and political part. We will see the characteristic feature of this age based on these 4 different parts, and then we will compare these 4 parts of with these 4 parts of later Vedic period, so that you can find the difference. One more thing, during the last, I have yesterday I asked you to go through the NCERT and read previous year questions. Did you even attempted those things, previous year questions? So did you find any difficulty? Because I was expecting that you will ask me 1 or 2 questions related with the religious life. I did not discuss that yesterday. नहीं, चलो मेरे को जो बताना है मैं बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ मैंने कोई टेम्पल की बात नहीं की थी जानबूझकर, बिकॉज मैंने आपको कल एक हिंट दिया था कि जो हमने नहीं पढ़ा, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन द क्लास दैट इफ समथिंग इज नॉट बीन टॉट इन द क्लास, इट मीन्स आइदर इट इज नॉट इम्पोर्टेंट और आइदर इट इज नॉट देयर, मोस्ट प्रोबेबली. आई एम नॉट सेइंग आई एम गॉड, पर मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वी आर रीडिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस and the syllabus given by UPSC, because whatever you are reading, if somebody has taken history as a subject in graduation, that person will read 3 years, and if PG so 2 more years. So whatever they are reading in 3 or 5 years, we are trying to cover in limited period, 3 month or 4 month time. So we will only read whatever is important for our exam perspective, not important from the perspective of history at large. So I have not mentioned the temple, it means temples were not found. What if you see, भूल जाओ आपको बचपन से कुछ भी पता है, temple क्या है? Temple is a place where community as a whole can go and pray. This is the thing. It means it's a public place, it is not a private place. तो पब्लिक प्लेस पे पब्लिक एक्टिविटी प्रेइंग के साथ साथ अगर आप किसी बड़ी जगह जाओगे, what you can see, you will see market associated with the temples. You can see many ancillary activities going on apart from religious activities. Sometimes you can find some trust attached with that religious institution. You can find some schools being run by the association. So why I am saying these things, if you are just aware of your surrounding, these are all things which the later temples and temple institutions will do in the ancient India, but here we did not see anything. So what we can say, in public life Harappans appear to be secular in nature. Harappan civilization appears to be secular. Why? अगर कोई भी public structure religious nature का नहीं है, it means religion was not playing very important role in public life. I am not saying personal life, because when the terracotta figurines were discovered from these areas, many terracotta figurines were of the nature of mother goddess, phallus,
it means they are worshipping something, but that worshipping was restricted to their private chambers, and religion appears to be their private affair. It also leaves a window where you can say they are following different religious practices. If it is leave up to you to do anything with your religious life at your home, then there is a probability that you will follow different things. But if we are going to a public place, then there will be certain rules, certain only this temple belongs to this god, so we will only worship this god, something like that. So you can see, you are going to be civil servant in the future, you have to be aware of your surroundings, you have to have deductive powers, you have inference power. All things will not be given you on a platter, you have to deduct in field also when you will doing your job. So like this approach, if you will have in exam, it will be very helpful, especially in prelims, because in prelims many times there is probability that you will not know the whole answer, all 4 options and all the things asked in the question. So if you start preparing in that way from today, it will be very easy for you to clear the exam. For some people prelims is very difficult. I am not saying prelims is difficult, but for some people prelims is very difficult, because you have to, in that particular time frame, you have to not only apply your knowledge, but many times you have to deduct answer from the limited knowledge you have about that particular question. Do we have Hindi students also? No na? ठीक है, मैं ट्राई करूंगा हिंदी में बोलने का, पर समटाइम्स इन अ फ्लो, क्योंकि इंग्लिश की क्लास है कभी कभी। कल तो मैंने लैंग्वेज बराबर रखी थी, कल किसी को दिक्कत तो नहीं ना समझने में? व्हाट आई वाज सेइंग, टेंपल, हाँ देखो यार, जब हम किसी सोसाइटी, किसी कल्चर के बारे में लिखते हैं, व्हाट यू विल राइट, कॉमन फीचर्स और एक्सेप्शन। क्या आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में ये आपने पढ़ा है कि हड़प्पन्स डू ह्यूमन सेक्रीफाइस? पढ़ा है? अब देखो सिलेंड्रिकल सेल्स में क्या मिला है, एविडेंस ऑफ स्केलेटन। अब उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कालीबंगा की बात कर रहे हैं, पहुंच गया? तो देखिए कालीबंगा इज जस्ट वन ऑफ द साइड, फर्स्ट थिंग। देयर इज सेकेंडली, मास लेवल पे नहीं मिला है। ये भी हो सकता है ना कि सेक्रीफाइस कभी कभी एक जने को कर दिया हो, ये भी हो सकता है सेक्रीफाइस नहीं करा हो, कोई चोर उचक्का आ गया, उसको मार दिया, उसको दफना दिया। सेक्रीफाइस आपको कैसे पता लगा? बिकॉज आपको उसके बोन पर कुछ एविडेंस मिले इन्फ्लिक्ट के वुंड्स के, क्या पता बेचारा लड़ाई करते हुए बचाते हुए मर गया हो। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स स्पेकुलेशंस, हमें स्पेकुलेशंस को, जैसे कि मान लो आप सब हैं, आप में से एक ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, तो अगर कोई फॉरेनर आपसे बोलेगा सब इंडियन ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, विल यू एक्सेप्ट दैट व्यू और यू विल डिबेट करोगे ना? तो इट इज डिबेटेबल पॉइंट, whatever is debatable point, whatever are exceptions, we will not write when we will gonna write the common feature. आप अपनी जगह सही हैं, पर दिस एग्जाम इज कॉमन, अगर कॉमन फीचर्स का क्वेश्चन तो कॉमन फीचर। और आपसे मुझे नहीं लगता जीएस के पेपर में दे विल आस्क कि व्हाट डू यू think about the evidence found from the Kalibanga about the human sacrifice, write your views. You will not able to write because it's a debatable topic, much more search or much more excavation and much more scholarly work needs to be done. So we will only restrict ourselves to the commonalities or general those points which UPSC gonna ask. मैंने क्या बोला अभी, आर्ट एंड कल्चर जब अपन पढ़ेंगे ना, तो उसमें बरियल के डिफरेंट मेथड्स फाउंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। कई जगह अनबरियल मिला है, मतलब आपको जला दिया, आपकी राख एक रखी पोट में और रख दी। कई जगह आपको मिला है कि जला दिया, कई जगह मिला है कि दफना दिया, कई जगह जलाया फिर दफना दिया, कई जगह बैठा दफना दिया, कई जगह लेटा दफना दिया। आई एम अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, पर वो यहाँ हम नहीं करें, थोड़ा हम डिटेल में वहाँ आर्ट एंड कल्चर में करेंगे, ठीक है ना? हाँ देखिए, किसी भी टाइम पीरियड का कल्चर अलग होता है। अब इसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं। देखिए जैसे कि मोहनजोदारो को कहा जाता है अलग अलग लेयर्स हैं, का मतलब टाइम, जब आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत टाइम तक रहते हो, अभी तो खैर ऑर्डर चेंज हो गए, पर आपने पहले देखा होगा रोड की हाइट बढ़ती रहती थी,
डामर होता था, फिर बढ़ता था, तो कई घर नीचे हो जाते थे। इसका अब तो रोड खोद के बनाते हैं। तो ये जो ऊंचाई बढ़ रही है, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम पीरियड एक जगह आप रहते जा रहे हो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आपकी वो जो एक्सकेवेशन, आपको नीचे जाने के लिए ज़्यादा एक्सकेवेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे रह रहे हैं वो लेयर बढ़ती जा रही है। आप कभी भी अगर देखोगे तो जब एक्सकेवेट करते हैं तो वो इस तरह दिखाते हैं वर्टिकल साइड में खड़े होके, ये लेयर मॉडर्न टाइम पीरियड की है, उसके नीचे जाएंगे बोलेंगे ये वैदिक टाइम पीरियड की है। व्हाई इज दैट? ये बात होगी एक तो, कि नीचे जाओगे। कल्चर का मतलब है आप जो अब कपड़े अभी पहनते हैं, अपन 20 साल पहले दूसरे तरह के कपड़े पहनते थे, उसके 20 साल पहले दूसरे कपड़े पहनते थे, तो एक कल्चरल फिनोमिना है, मतलब टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है, कुछ इस तरह का है। डिटेल में और बता सकता हूँ, पर इट विल नॉट बी बेनिफिशियल टू ऑल द पीपल इन द सब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, इसको यहीं खत्म करते हैं, बस यहीं खत्म, क्लास के बाद। आज हमें वैदिक पीरियड, व्हाट आई वाज सेइंग। तो मेरे को यही कहना है कि सेक्युलर लाइफ है, टेम्पल और पैलेस, टेम्पल नहीं है और पैलेसेस भी कोई बड़े नहीं, अपन को सिटाडल मिला है। पैलेस क्या होता है कि आप वहाँ ये बता सकते हो कि यहाँ लोग बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, जैसे कि मोहनजोदारो में एक जो बात है, हमने बात डिस्कस किया था, उस बात के पास एक बड़ा सा एरिया मिला है जिसको असेंबली हॉल, या कोई इंपॉर्टेंट आदमी रह रहा है, क्योंकि जो बियर्डेड मैन है, उस बियर्डेड मैन के जो स्टेचू है वो वहीं उसी एरिया से मिला है। तो ये भी हो सकता है कि वो मंदिर टाइप हो, ये भी हो सकता है वो उसका घर हो, समथिंग। कहाँ पे था? घोड़ा नहीं है, बता दिया था ना कल। और कौन सा मेटल नहीं यूज कर रहे वो लोग? तो अब ऋग्वेदा में हम सबसे पहले देखेंगे सोसाइटी। अर्जु जी, प्रिंट आउट मिलेगा? अच्छा ठीक। तो सोसाइटी में हम क्या देख रहे हैं, देखिए, जब आप सोसाइटी देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि सोसाइटी पेट्रियार्कल है या मेट्रियार्कल है, यानी कि पितृ सत्तात्मक है या मातृ सत्तात्मक। यही। अरे मैडम, आपको इंग्लिश में आ गया था ना समझ में, तो जिसको हिंदी में थी। मैं जब बोल रहा हूँ तो सिर्फ मेरे खुद को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बोलो आपको जितने में समझ आ जाए वहीं रुक जाइए, जिसको नहीं आ रहा होगा, मतलब आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा ना। तो ये सोसाइटी भी कैसी है? पेट्रियार्कल, जो आपकी है वही इनकी है। पेट्रियार्कल का मतलब है आपकी फैमिली का हेड कौन है? मेल। पेट्रीलिनियल मतलब आपके वंश किसके नाम से जाना जा रहा है? योर फैमिली विल बी नोन बाय द नेम ऑफ ए मेल मेंबर। पेट्रीलोकल मतलब आफ्टर मैरिज यू विल गो एंड लिव एट द प्लेस ऑफ योर हस्बैंड। लेट क्यों? चलिए। नहीं, मैं आप पे नहीं हंसा, मैं कुछ। तो पेट्रियार्कल, पेट्रीलिनियल एंड पेट्रीलोकल। So this society is also like this. After that, society was largely egalitarian. कैसी है? largely मतलब there is no sharp social division between the members of this society. Why I am using largely? Because in any society some kind of social distinctions will be there. Not all people will be same, and we will see what kind of distinctions are there. ठीक है, उसके बाद क्या है? सोसाइटी का नेचर कैसा है? ट्राइबल। जनरली आपको सोसाइटी में भी आप पढ़ेंगे, जनरली ट्राइबल सोसाइटीज इगेलिटेरियन होती हैं, बिकॉज रिसोर्सेस बहुत ही मीगर होते हैं। जब सब गरीब होंगे तो भाईचारा ज्यादा होगा, so there will be more brotherhood when you will have meager resources, because there will be less things to fight for. हंसी नहीं रहे आप लोग आज? और सोसाइटी कैसी है? पेस्टोरल। ये हालांकि हम है ना इकोनॉमी में देखेंगे, हाँ, पर ये हम इकोनॉमी में देखेंगे यार। उसके बाद सोसाइटी में व्हाट इज मोर प्रेफरेबल, दे वर प्रेफरिंग मेल चाइल्ड।
but at the same time I will mention these all things, I will dictate or give you notes. Just understand, male child is preferable, but at the same time I will like to highlight, female if born, they were treated with respect and equality in most of the sphere. Where is not equality is there? Equality was there when they are going for fight. Women generally do not gonna fight. तो इक्वलिटी में जब हम बात कर रहे हैं तो हम सब चीजें देखेंगे ना उस चीज में मैंने. अब अगर हम बात करें अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज वॉज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज. व्हेन वी आर सेइंग पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, इट मीन्स क्या एब्सेंट है? चाइल्ड मैरिज वॉज एब्सेंट. दिस question can be asked, this factual statement can be, what does egalitarian mean and how is it different from agrarian? Very good. Agrarian matlab agriculture based society, egalitarian matlab equality was there in society. So please don't confuse with the similar sounding words. It is a question of understanding a particular word, not the question of history. Egalitarian is equality, agrarian matlab agriculture based. Generally our rural society is agrarian society, but our urban society is service based society, something like that. I hope I have answered what I was saying. Marriage. So post puberty marriage, child marriage was absent. Marriage में type होती है polygamy और monogamy. So generally what they were practicing, अरे यार monogamy. Generally they were practicing monogamy, but polygamy was also known. Known means exceptions are always there. महाभारत पढ़ी है ना? So when we are reading about the पांडवास, तो polygamy में भी 2 टाइप होते हैं. पॉलीहेंड्री एंड देखना, हाँ. और तो जनरली समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. पॉलीगेमी, अब उसमें महाभारत में क्या सबकी एक से ज्यादा शादी हो रखी है, और जनरली रिसोर्सेस जो होते हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करता है आपकी फैमिली. हाँ ये हो गया. अब वी विल टॉक अबाउट एजुकेशन. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी. एजुकेशन कैसे इम्पार्ट हो रही है? is well developed, but education will be imparted orally because script is yet to be invented. बोलिए सुन. It is not important. Whatever I am teaching, only that thing. देखिए कई चीज आपका ऑप्शन क्या है? ये सही. अच्छा देखिए, we are not here to do research or scholarship on any particular subject. I am not saying in a negative sense. What I am trying to say, there is people have given their whole life for a single subject, or not only a single subject, for a single period. Not only a single period, a single characteristic feature of that period. Some people might have given their whole life for only studying the society of Rig Vedic period. Even in that also for that particular century. मतलब समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब है. So we will not, never we will able to match that level. Our only motive is to read only that much thing which will help us to clear this exam. If we are reading anything else, you are reducing your own chance. You might gain some knowledge, but it will be at the cost of your selection, or if his selection is ensured, then it will be at the cost of your rank. If you are ready to make that sacrifice, please go and read as much as possible. Have अभी इसमें concept आएगा ब्रह्मवादिनी. I am not saying in a negative sense. Whatever I am saying. Please restrict yourself. It is good thing that you are curious, but curiosity should not kill your chances. Have faith in your teachers. If you have given time and chosen a particular teacher at particular institute, please trust them. Education imparted orally.
एजुकेशन में अब एजुकेशन मेल को भी मिलेगी और फीमेल को भी मिलेगी. बिफोर फर्दर गोइंग इन एजुकेशन आई विल लाइक टू टॉक अबाउट द ये वर्ना सिस्टम जो अपन हम जनरली कहते. इन अर्लीस्ट पीरियड देर आर ओनली टू थिंग्स, आर्यंस एंड नॉन आर्यंस. अभी वर्ना नहीं आया है. आर्यंस मीन क्या ये रेशियल टर्म है, लिंग्विस्टिक टर्म है, ऑनरिक टर्म है, क्या है? This is the question gonna will be asked, and racial term if you are gonna say, it is a wrong answer. Aryans, when they are saying Rigveda, where Rigveda, when you will find the word Aryan, it was not used for denoting a particular race. It is for denoting those people who are speaking Indo-European language या फिर Indo-Iranian language. तो इसमें क्या कहेंगे? Those people, Aryan term is a linguistic in the sense people who are speaking a particular language were called as Aryans. Also people as a honorific title, आप आर्य हैं, it means you are a person of honor, you are a person of, so it is used in linguistic terms as well as honoric term, honoric title type. तो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि आर्य का मतलब क्या है, आर्यन का मतलब क्या है? रेस है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है. तो लिंग्विस्टिक ग्रुप है. अगर आप सब लोग हिंदी भाषी हैं तो यू आर हिंदी स्पीकिंग पीपल, इफ यू आर तमिल स्पीकिंग पीपल यू आर समथिंग लाइक दैट. तो वैसा है. डोंट कंफ्यूज आर्यंस विद रेस. तो अब ये सोसाइटी किस तरह की है? ट्राइबल सोसाइटी है. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अब नॉन आर्यंस में क्या है? दास और दस्युस. दस्युस, दास का मतलब लिटरली मतलब होता है स्लेव. स्लेव को दास कहते हैं ना हिंदी. और दस्युस जनरली नेगेटिव टर्म है. दस्यु आप में से किसी ने चंबल, डकेट्स ऑफ चंबल सुना है? तो उनको बोला जाता है दस्यु. डाकुओं को दस्यु भी बोला जाता है. तो जो बड़ा डाकू होता था उसको बोलते थे द बिगर द बैंडिट, द टाइटल विल बी दस्यु किंग, दस्यु सम्राट. आई एम जस्ट गिविंग ए रेफरेंस सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर. प्लीज डोंट इक्वेट, जस्ट आई एम गिविंग एज ए रेफरेंस. तो नॉन आर्यंस और आर्यंस, like if you go to a particular city you might find some people from your state, you might not find some people from your state, something like that. Aryans and non-Aryans. Non-Aryans will be those people who are not speaking language of their particular family, and those people which according to them are not honoric enough to be called as Aryans, not honoric enough to call the Shiv. ठीक है. आप इतने सीरियस क्यों हो गए सब लोग? समझ नहीं आ रहा तो पूछिए, समझ आ रहा है ना? तो अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अभी कैसी सोसाइटी मैंने बताई? ट्राइबल. ट्राइबल इज लार्जली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद इन ऋग्वेदिक पीरियड वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस ट्राइबल सोसाइटी got divided into 3 type of people. They were, रूलर से ज्यादा बेटर वर्ड है, वॉरियर, प्रीस्ट एंड कॉमनर्स. व्हाट डू मीन बाय वॉरियर? जब आपकी लड़ाई होगी तो ये आपके लिए लड़ेंगे. जब आपको पूजा करनी होगी तो ये वो काम करेंगे. और कॉमनर्स कौन है? दे विल डू जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी. इन दिस सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, देखिए जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है फॉर एनी सोसाइटी, द कॉम्पिटेंस लेवल और क्या कहते हैं स्किल सेट जब भी बढ़ता है, प्रोफेशनलिज्म जब भी बढ़ता है, स्पेशलाइजेशन बढ़ता है. तो अभी ये बहुत ही ट्राइबल सोसाइटी है, तो स्पेशलाइजेशन का लेवल विल बी वेरी मिनिमल. इट मींस वॉरियर विल नॉट डू वॉर ऑल द टाइम, priest will not do priestly functions all the time. All are generally commoners. At the specific time period, these commoners will have weapons in their hand and with these dandas they will go and fight. क्योंकि अभी तक क्या नहीं है इनके पास?
आयरन नहीं है। ऋग्वेदिक पीपल, ऋग्वेदिक एज, देर इज नो एविडेंस ऑफ आयरन, प्लीज राइट इट डाउन, आयरन एज, देर इज नो एविडेंस ऑफ आयरन इन ऋग्वेदिक टाइम पीरियड। So tomorrow in 2024, if there is an option that Rigvedic people were aware of iron, या फिर they will ask indirectly in the warfare they were using weapons made of iron, तो आपको क्या लिखना है? गलत स्टेट। अब जब हम कह रहे हैं इस टाइम पीरियड में नहीं है, इसका मतलब हमने कहा था हड़प्पा में भी नहीं है, तो अगर ये आ गया कि हड़प्पन्स वर यूजिंग आर्म कोट मेड ऑफ आयरन, तो भी गलत हो गया ना। तो कल मत पूछना कि आपने तो इसका बताया था उसका नहीं बताया, मैं अभी बता। So over a period of time, these was the social division emerge. When I am saying social division, it does not mean that society is hierarchically divided. Division का मतलब ये है आधे लोग इधर बैठे हैं, आधे लोग इधर बैठे हैं. It doesn't mean that this is superior or these are inferior. This is just a division for the work purposes. But over a period of time, some hierarchy emerged, but it will take some time. अभी नहीं. It is quite possible for a single person to do all these activities at different junctures of time. It means tomorrow if you gonna change your profession, I will gonna fight, then you will become warrior. Just day after tomorrow, I will be do some these kind of activities. समझ गए? अब we will go again on. हाँ, over a period of time क्या हुआ फिर? अब ये जो एजुकेशन है ना, ओरली जो मैं बात कर रहा हूँ ऋग्वेदी टाइम की, ये बहुत ही नेसेंट स्टेज में है. दे वर नॉट मच. कहाँ अभी तो बताया यार, जब लड़ाई होगी तब करेंगे, वरना तो खेत जोत. स्पेशलाइजेशन इन टूडेज टाइम, आर्मी विल डू आर्मी फाइटिंग एक्टिविटी, बट दिस इज नॉट द केस ऑलवेज. मैंने कल भी कहा था, ओनली सरप्लस प्रोडक्शन विल लीड टू स्पेशलाइजेशन. और यहाँ पे जो एजुकेशन है ना, ये अभी नेसेंट स्टेज में है. कौन सी स्टेज में है? इट मीन्स अर्ली स्टेज, बिकॉज राइटिंग नहीं है, जो भी होगा ओरली होगा. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दीज थी. ओवरियर मतलब क्या हो गया? Over a period of time, four-fold Varna system emerged. At the end of Rig Veda, we found one reference in the Purusha Sukta. Sukta means hymn. Hymn मतलब वर्स, मंत्र. ये है कहाँ पे? 10th मंडला. 10th मंडला ऑफ Rig Veda. What do you mean by this? Mandala is book, Rig Veda is chapter. Rig Veda is combination of 10 books, 10 mandalas. So इसमें क्या रिफरेंस है? फोर फोल्ड वर्ना. चौथा वर्ण कौन सा जुड़ गया? शूद्रा. एजुकेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 3 वर्ना. Shudras were not having the right to receive education. For education purpose, male and female both were receiving education. For initiating in the education process, स्कूल जाने के पहले आपको क्या होगा? उपनयन संस्कार होगा. It is not written in notes. If you want to write, you can write. Okay. Which ma'am? At the end of Rig Veda, Rigvedic period, it means कहाँ पे पहुँच गए हम? 1000 BC के आसपास. What you told about linguistic? I told 2 minutes, madam. I was saying that Aryans, the word Aryans were used to denote a linguistic group, not a race. Only that thing I told about. Aryans mean either a people speaking of a particular language, means linguistic group, or honorific title, people of high birth. हाँ हाँ मैं लिख देता हूँ, है ना.
पहले एक बार में एक ना मैडम, मेरे पास आई है ओनली at the end of Rigvedic period, four-fold Varna division emerged. At the end of Rigvedic period, four-fold Varna division emerged, and the earliest reference of four Varnas were found in the Purusha Shukta hymn of 10th mandala of Rigveda. ठीक है, रिपीट करूं? प्लीज समवन हेल्प मी आउट, कहां तक मैंने क्या बोला है? four-fold Varna system, four-fold Varna system emerged, and the earliest reference at the end of at the end of Rigvedic period, four-fold Varna system emerged, and the first reference of this four-fold Varna system found at Purusha Shukta hymn of 10th mandala of Rigveda. अब लिख लिया सबने? नहीं लिखा तो मैं दोबारा बोलूं या अपने पड़ोसी से पूछ ले, और अगर दिक्कत हो तो कल वापस पूछ। कहाँ पे मैडम? HYMN, इट इज इंग्लिश वर्ड, हिम मतलब मंत्र, मंत्र। जनरली मैंने बोला था, अब देखो आप कोई लड़ने चला जाएगा तो रोक नहीं रहे, हम क्या बात कर रहे हैं? जनरल टेंडेंसी। हाउस होल्ड वर्क विल बी असाइंड टू फीमेल एंड आउटडोर वर्क्स विल बी असाइंड टू मेन। बट ये जनरल बात हम कह रहे हैं जो हमें एविडेंस मिलते हैं फ्रॉम द ऋग्वेदिक लिटरेचर। अगर कोई चला जाएगा बाहर, काम वाम करेगा, लड़ने चला जाएगा, वी विल नॉट गो ना स्टॉप दैट, क्योंकि वो तो हो गया है। बट व्हेन वी वर सीइंग, वी आर जनरली सीइंग व्हाट हैव बीन फाउंड। हाँ, आप कोई और भी कुछ पूछ रहा था क्या? मंडला में बुक्स देखिए, आपको कोई बुक दी एनसीईआरटी, उसमें चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स को बुक भी कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। तो ऋग्वेदा में 10 चैप्टर्स हैं, 10 डिफरेंट बुक्स हैं। ईच चैप्टर और ईच बुक ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक इज नोन एज मंडल। Infrastructure, यार, why you are using infrastructure in a such general terms? What do you mean by infrastructure? क्या है? Do you know the origin of the school education system? Where is emerged? वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मेसोपोटामिया। What do you mean by schooling? Schooling means peoples having same education level will study together. कभी सोचा है? ये होता है स्कूल का मतलब। एक क्लास में वही बच्चे बैठे होते हैं जिन्होंने पिछली क्लास पास कर ली, मतलब they will at the same education level. So why you are asking these kind of question? Do you think कि बिल्डिंग होगी? जब मैंने कह दिया मेटेरियल कल्चर इस टाइम पीरियड पे बहुत ही नेसेंट स्टेज में, there is no permanent building. Why you are asking these type of question? हाँ, तो कोई दिक्कत है? पढ़ने से मना कर देंगे अपन? अगर आपको पेड़ के नीचे कल मैं पढ़ाने लगूं और मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो हम मना कर देंगे? तो खत्म ना यार, ना डोंट, प्लीज प्लीज, क्लास के बाद। हाँ हाँ मैडम, डिवीजन मैंने बोला ना, देखिए अभी 400 1500 से 1000 ईयर का जो टाइम पीरियड है, जैसे जैसे हम 1000 के आसपास आने लगे, जब हम कह रहे ड्यूरिंग द लेटर एट द एंड ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड, जब मतलब कैसे पता लगा एंड? क्योंकि अब डिटेल चलो सुनो, कितनी बुक्स हैं? बुक नंबर 2 टू बुक नंबर 9 इसको माना जाता है 1 और 10, इनको माना जाता है लेटर एडिशन। इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन यहां मिलेगी वो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड की होगी।
जो यहाँ मिलेगी वो ऋग्वेदिक पीरियड में लेटर टाइम की होगी। तो कहाँ मिल रहा है आपको ये पुरुषा शुक्ताहम? और आप कहीं और जाके पढ़ोगे तो ये भी मिलेगा आपको कि दिस इज ए लेटर एडिशन मिडाइवल और मॉडर्न टाइम पे लोगों ने लिख दिए। तो प्लीज क्या आपका सवाल क्या था कि लेटर में हुआ, कुछ ऐसा ही पूछा था, क्या पूछा था? हाँ लेटर एडिशन ना, इट मीन पहले सोसाइटी में 3 लोग हैं, वॉरियर्स, प्रिस्ट, कॉमनर्स। अब बोला कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो इन तीनों की सर्विस कर रहे होंगे, उनका ओनली लाइवलीहुड विल बी गिविंग सर्विस टू दीज 3 ग्रुप्स। उस टर्म को बना बोल दिया शूद्रा, पर ये अभी भी डेरोगेटरी टर्म नहीं है। आप चाहो आपको बोलो कि नहीं मैं तो कल से खेती करूंगा, तो आप क्या बन गए? वैश्य बन गए। आप बोलो नहीं मैं तो लड़ने जा रहा हूं, तो आप क्या बन गए? वॉरियर बन गए। यही मतलब है व्हेन यू आर डूइंग मेनियल जॉब्स। अब उपनयन संस्कार वी वर डिस्कसिंग। तो उपनयन संस्कार इज इनिशिएशन प्रोसेस ऑफ एजुकेशन लाइफ। और जब उपनयन संस्कार होता है तो आपको क्या पहनाया जाएगा? देखो गुरुकुल्स वगैरह है ना, डोंट यूज दीज थिंग्स इन अ वेरी जनरल वे। वी वर ओनली रीडिंग अबाउट द ऋग्वेदिक पीरियड। दे वर हैविंग ए नोमेडिक लाइफ। नोमेडिक लाइफ जब रह रहे होंगे, सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा, तो जो गुरुकुल में पढ़ रहा और पढ़ा रहा होगा उसको अनाज कौन देगा, खाना कौन देगा? डोंट बी टू अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर आइडिया। ये सोचो तुम्हें कुछ नहीं आता, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही अंतिम सत्य है। एंड अब जो भी क्वेश्चन होंगे जब मैं टॉपिक यहीं पे, जब मैं कहूंगा अब पूछो तभी पूछना, बीच में मत पूछना, क्योंकि मेरी क्लास के बाद भी क्लास है ना, मैं तो पढ़ा सकता हूँ पर फिर अगला आदमी को दिक्कत होगी। एंड प्लीज लेट मी फर्स्ट फिनिश, देन आई विल गिव यू टाइम, देन यू। क्योंकि सिर्फ दिस सेरेमनी, उपनयन संस्कार एंड जनेऊ सेरेमनी, जो एजुकेशन में इनिशिएशन की प्रोसेस है, सिर्फ ब्राह्मणा, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अवेलेबल है। एंड इट इज मार्क्ड एज द सेकंड बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ। दैट इज व्हाई दे ऑल वर कॉल्ड एज द्विजना। द्विजना मीन्स 2 lives. Now you have reborn, something like that, and it is for both male and female. So I think all things were cleared. Some females used to pursue education for their whole life and they were termed as Brahmavadini. If you are not gonna stop at the end of your education and you want to pursue the education for your whole life, you will be called as females will be called as Brahmavadini.
and there are evidences that some of the hymns of Rig Veda were composed by females. If anybody is gonna ask you the level of equality, egalitarian society during the Rig Vedic period, you can give this example that even they were having avenues to attain education, because the example is that some of the hymns of the sacred texts such as Rig Veda were composed by females, Brahmavadinis. It itself shows that they could attain a higher status in society, they could attain higher level of education in society. That is why they were able to compose hymns of Rig Veda. The examples of these Brahmavadinis present in your notes. अरे मेरे पास भी आ गया, लिख लो, नाम लिख लो, अपाला, घोषा, मैत्रिया, ऐसे इसमें है ना. मेरे को लग नहीं रहा मैं आज भी डिक्टेट करा पाऊंगा, तो प्लीज गो थ्रू दीज नोट्स. नहीं अभी मत देखो, अभी मुझे देखो, बस समझ लो. ये नहीं था बस उसमें, ये लिख लो. द्विजना, आपकी एक लाइफ थी जो आप घर पे रहते थे तब, अब आप यहाँ पढ़ने आ गई, अब आप सिविल सर्वेंट बन जाओगी, अब आप चेंज हो गई, दूसरी लाइफ हो गई. मैरिज मैंने बता दिया कैसी थी, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, वो भी लिख लेना, वो भी शायद नोट्स में नहीं. और मैं क्या कह रहा था, मैरिज कैसी थी, सेक्रामेंट, ये भी लिख लो. मैरिज वॉज सेक्रामेंट. सेक्रामेंट मीन्स यू कांट गिव डाइवोर्स. It is a ritual, it is not a contract. In some religion marriage is a contract. Contract can be broken, you can break it. I am not giving any example, I am just saying in some there is a contract, in some it is ritual, so non dissoluble. समझ गए इतना. Sacramental religion, divorce was not possible. हो गया, आगे बढ़े. द्विजना, द्विजन यानी जिसका जन्म 2 बार हुआ हो, द्विजन, 2 lives. Because these 3 category of people, I am not saying these 3 hierarchical division नहीं करा, these 3 category of people were having access to education, and for initiation of this process, Upnayan, Sanskar and Janev ceremony they were performing these 2 ceremonies. And these 2 ceremonies, the time you will wear Janev, it means you have entered a new life, because you can have 2 lives, 2 different lives. That is why you have been called as Dvijana. हो गया सब. बस 1 more point, then society will be end. बट अभी हमें 7 टॉपिक और करने हैं, अभी नहीं 8 टॉपिक और करने हैं, और अभी हमने 1 खत्म. तो प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस फॉर सम टाइम. आपके जो घोड़े इधर उधर दौड़ा रहे हो आप, कोई बात नहीं, पूछो आराम से पूछो. इट इज बेटर टू एंड समथिंग इन ए one go, then you will ask and come again and again in 1-2 month time. It will take time, but on a longer duration, this whatever is happening today, it will gonna hurt you, and we will face some problems in completing the course. ये हो गया. नहीं, ये तो मैंने कहा ही नहीं. The person who gonna pursue the educational pursuit whole of their life, they were termed as Brahmavadini. My responses are limited. तो वहां पे कहीं भी ऐसा क्या मैंने बोला, मैंने नहीं बोला तो कुछ कर लेती होंगी, कुछ नहीं करती होंगी, रूल तो हमने नहीं देखा ऐसा कुछ. क्योंकि आपको बात बताता हूँ मजेदार. एक ब्रह्मवादिनी है, लोपा, क्या नाम है इनका, लोपामुद्रा. लोपामुद्रा के हस्बैंड जो हैं वो क्या हैं, वो भी एक
वो भी एक राइटर हैं, अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि का नाम सुना है? तो वो इनके हस्बैंड हैं। तो इस एविडेंस से हमें क्या पता लगा कि शादी कर लेती हैं, हस्बैंड है तो शादी हुई होगी। और कौन सी शादी हो रही है? When I have said that शादी इसी तरह की, तो उसी तरह की है ना भैया। Why you are keep testing my patience? मैं अच्छा नहीं लग रहा आपको हंसता हुआ, गुस्सा नहीं करता हुआ? क्यों मेरा बीपी बढ़ा रहे हैं? अभी जब हमने देखा पेट्रियार्कल, पेट्रीलोकल, पेट्रीलिनियल, तो जो फैमिली है, फैमिली का हेड कौन है? मेल मेंबर, उसको क्या बोलेंगे? कुलापा। और फैमिली को क्या बोलते हैं? तो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। समझ गए? हाँ के ना? तो अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट यूनिट है कुल, कुल के बाद है ग्राम, ठीक है, ग्राम के बाद है विस, और विस के बाद है, अब जन का मतलब है ट्राइब, विस का मतलब है क्लेन, ग्राम तो समझ ही रहे हो, विलेज। तो ये है असेंडिंग डिसेंडिंग, समझ गए? ये ट्राइब्स कौन सी है? नोमेडिक है, घूमती रहेंगी। यहां तक समझ गए? सोसाइटी खत्म। नोट्स में है आपके, लिख लो, सब लिख लो, कुछ मत छोड़ना। नहीं, लिख लो लिख लो, मजाक कर रहे। और स्लेवरी, वैसे मैंने आपको बता दिया दास और दस्यु हैं, दास का मतलब स्लेव है, तो स्लेवरी पता होगी तभी नाम दिया, पर फिर भी बता देता हूँ। स्लेवरी वॉज नॉन, स्लेवरी के फंक्शन इकोनॉमिक फंक्शन में देखेंगे। हो गया हो गया हो गया, चलो अब हम देखेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसी है? पेस्टोरल। पेस्टोरल मतलब क्या है? नोमेडिक। जब पेस्टोरल होगी तो किसकी वैल्यू है? केटल्स, मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन। मेटेरियल वेल्थ किस पे डिफाइंड होगी? सबसे इंपॉर्टेंट केटल्स क्या हैं? हॉर्स एंड काऊ की, क्योंकि हॉर्स की किसमें सिग्निफिकेंस है? और काउस की फूड देंगे। हाँ, तो फूड में और क्या देंगे? एनर्जी सोर्स, काऊ डंग। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के एविडेंस बहुत ही मीगर हैं। एट बेस्ट वी कैन से इफ दे वर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर इट वाज नॉट द सेटल्ड वन बट relation one at best, and it was not the mainstay of your economic activities. It means आपके पास क्या है? गाय हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं। दिस इज द मेन स्टे ऑफ योर वेल्थ, इकोनॉमिक वेल्थ एंड योर प्रोस्पेरिटी और वॉट एवर यू वांट टू हैव। दिस इज जस्ट ए सप्लीमेंट्री थिंग, नॉट ऑल ट्राइब्स वर डूइंग, नॉट ऑल पीपल वर डूइंग। कहीं गए वहां उगा हुआ है खा लिया, या गए कहीं जला के जंगल जगा के थोड़ा उग गया तो अपने आप उग गया, टाइप ऑफ थिंग। बिकॉज द रेफरेंसेस ऑफ टाइप ऑफ ग्रेन्स इन ऋग्वेदिक लिटरेचर वर आर वेरी मीगर एंड कंपेयर टू लेटर वैदिक पोस्ट लेटर वैदिक टेक्स्ट it was not favorably treated the occupation of agriculture. कोई कुछ डाउट? इतना मतलब कंफ्यूजन क्यों? समझ रहे हो ना? आप क्या नहीं कर रहे हो? खेती वेती में आपका इंटरेस्ट नहीं है, योर मेन इंटरेस्ट इज
गाय हाँकने में, समथिंग लाइक। आगे बढ़ते हैं। नो सिस्टम ऑफ, क्योंकि अब आप क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, सो यू कांट ट्रीट द लैंड एज ए प्रॉपर्टी, so no concept of land as a property. No concept of land as property. आगे, no currency system. क्या हो रहा है? लिमिटेड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। क्यों? क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है। सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। बहुत लिमिटेड लेवल पे करोगे। क्या क्या कर लोगे? खुद के कपड़े बना लोगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो नाम जनरली आता है वो है, कुछ प्रोफेशन है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है रथकर, जो रथ बनाएगा, चैरियट। It has both military significance as well as chariot race करेंगे for fun, recreation। समझ गए? एग्रीकल्चर में जनरली they were what they were using, बार्ले। इसको, हाँ कोई कुछ कह रहा है? ठीक है, रथकर, रथकर क्या है? रथ बनाने वाला, एक प्रोफेशन है। द चैरियट मेकर वी आर यूजिंग द नेम रथकर। जल्दी लिख लो अगर लिखना है तो, या आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब कोई भी सोसाइटी कितनी भी पेस्टोरल हो, some kind of trade will be there. Why? Because all the necessity of life cannot, you cannot get from a single point. So some kind of trade activities were there, but they were very limited. तो क्या लिखेंगे? ठीक है, ट्रेड वॉज लिमिटेड। ये जो मैं आपको लिख रहा हूँ ना, ये आपके शॉर्ट पॉइंट्स हैं, ये नोट्स नहीं है। नोट्स तो जो आपको मिल रहे हैं उसको आपको बनाना है, और रेफरेंस जो मैंने आपसे कहा है, आप किताब पढ़ेंगे उसमें से फिर कुछ मिले तो वो लिखना है। मैं एक तरीका तो ये सकता है मैं आऊँ और लिखवा दूँ और उसके साथ समझा दूँ। एक तरीका ये है कि हम ज़्यादा डिस्कस करें, ज़्यादा ये करें। आफ्टर 2-3 क्लास वी विल रीच ए कंक्लूजन, जहाँ पे आई थिंक वी विल रीच कि क्या ज़्यादा बेनिफिशियल आपको लगे। एंड वेयर आई वाज, क्योंकि प्रीलिम्स में ही जनरली इसका यूटिलाइजेशन है इस टॉपिक के। अब इसके बाद क्या है? हाँ, आपका चीफ सोर्स क्या है प्रॉपर्टी का, वेल्थ का? क्या है? तो वॉर्स विल बी फॉट ओनली फॉर कैटल। जो आप एक दिन बैठे हो, आप अभी कहाँ हो? हम सब चले गए, मान लो हम सब वी आर पार्ट ऑफ ऋग वैदिक सोसाइटी। वंस वी आर सिटिंग टुगेदर एंड लेट्स गो एंड हैव सम केटल्स फ्रॉम नेबर्स। तो आप जाओगे, डंडे वंडे उठाओगे और केटल रेड करोगे, और रात को जाके उनकी क्या चुरा लाओगे? अमीर हो गए। कैसे अमीर हो गए? अगर आपको ऋग्वैदिक टाइम पे अमीर होना है तो कैसे अमीर हो गए? तो या तो एक तरीका है मेहनत करो, 1 से 2, 2 से 3, धीरे धीरे केटल तो उनकी लाइफ साइकिल जैसे बढ़ेगी वैसे ही बढ़ेगी, या फिर आप बन जाओ चोर। तो जो जितना बड़ा चोर उतना अच्छा राजा। आपको केटल दिला रहा है ना, क्योंकि उस टाइम पे क्या नहीं है, रेगुलर टैक्सेशन नहीं है। वन मोर पॉइंट, नो रेगुलर
टैक्सेशन, बिकॉज अभी तक स्टेट इमर्ज ही नहीं हुई है। तो आपका द इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसमें इकोनॉमी में? गिफ्ट इकोनॉमी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिफ्ट इकोनॉमी? मींस जो आप केटल चुरा कर लाए हो वो आपस में बांट दोगे। किसी के बर्थडे पे जाते हो तो उसको गिफ्ट देते हो और वो आपको क्या देता है? रिटर्न गिफ्ट। बचपन में चोर हो गए हो। तो इसको क्या कहते हैं? गिफ्ट इकोनॉमी। आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं और कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, कैसे होगा? मैं इसको जब हम पॉलिटिकल फंक्शन देखेंगे ना वहां पे डिटेल में देखेंगे, पर इकोनॉमिक फंक्शन में समझ लो। गिफ्ट इकोनॉमी यूज्ड टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग द ट्राइबल सोसाइटी। Gift economy used to play very important part in the redistribution of resources within। लिखना नहीं है ये वाला लिख लिया जो मैं वो भी बोला? नहीं जो मैं भी बोला। Gift economy used to play very important role। Gift economy used to play very important role in the redistribution of resources within tribal society। I am repeating, gift economy used to play very important role in the redistribution of resources within the tribal society। How? आप वॉरियर्स हैं, आप गए और आप केटल्स ले आए। अब जो भी उस टाइम राजा था, अभी देखेंगे राजा का कॉन्सेप्ट क्या है। whoever is the king, that king will redistribute these cattle resources among the tribals in the recognition of the efforts made by the whole tribe in winning this war of cattle। First thing। Second, because some people were doing some specific non-productive activities, means they were fighting war and they were doing some priestly activities, so they were giving their some time which is they were indulging in non-producing activity, but commoners were producing। So in recognition of these efforts they will give some bali, not bali matlab voluntary offering। you will give some voluntary offering to these groups, especially the kshatriyas, warriors, raja। then raja will take these things and redistribute among the tribal members। it is also an example, thank you ma'am, it is also an example of egalitarianism prevalent in the society। देखो question can be asked in n number of ways। if you know the thing wholly completely you can write the answer। understood the point? ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन और वो तो नहीं लग रहा? अगर लग भी रहा है तो रिपीट घर पे जाके पढ़ना सही हो जाए। हाँ बताओ कौन सा वाला? शुरू से? देखो इक्वलिटी कुछ नहीं होती। रिडिस्ट्रीब्यूट वर्ड यूज किया है, रिडिस्ट्रीब्यूट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करा है। किसको कितना दिया वो तो रोल के ऊपर है ना। तुम्हारा सिर फूट गया लड़ाई में, तुम्हें ज्यादा दे देंगे, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ गए? तुम मुझे ज्यादा पसंद हो तो मैं ज्यादा भी दे सकता हूँ, परेशान कर, मतलब देखिए जब मैं कह रहा हूँ कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, राजा को हटा भी तो सकते हैं। अभी हम देखेंगे पॉलिटिक देखेंगे ना तो यू विल अंडरस्टूड। पॉलिटी हेड कौन है? राजा और किंग, बट दिस पोजीशन इज नॉट हेरेडिटरी, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। किस तरह का किंग है? चूजन किंग। अब चूजन किंग तो कोई असेंबली होगी तो हमारे पास नाम है सभा, समिति, विधत। सभा क्या है? एल्डर्स प्लस ब्राह्मणा, ये इसके मेंबर हैं। ब्राह्मणा मतलब यहाँ पे वो वाले ब्राह्मणा मतलब इंटेलिजेंट ना, इंटेलिजेंट टाइप ऑफ थिंग।
ठीक है। समिति में कौन है? फुल ट्राइब, पूरा ट्राइब के मेंबर है। व्हाट इज देयर मेन फंक्शन? टू चूज किंग अमोंग देमसेल्फ। वुमेन कैन पार्टिसिपेट इन सभा एज वेल एज समिति। व्हाट आई वाज सेइंग? शोभा, आप क्लियर है कि मैं रिपीट करूं? प्लीज आंसर इफ शोभा you want me to repeat or it is, I think Kriti has written it. What I was saying, sabha, what is sabha? है इसमें सभा क्या है मेरे ख्याल से, लेट मी चेक। नहीं इसमें नहीं है, डिटेल नहीं है, लिख लो। सभा क्या है? एल्डर्स, द असेंबली ऑफ एल्डर्स एंड ब्राह्मणास, बस इतना सा काफी है। समिति, असेंबली, ट्राइबल असेंबली। एंड मेन फंक्शन क्या है? टू इलेक्ट किंग, मतलब किंग क्या है? इलेक्ट। विधत क्या है? इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट असेंबली, इसका फंक्शन डिफरेंट, विधत टी भी है। नहीं, वुमेन्स वर अलाउड इन ऑल दिस, सभा एंड समिति सब में अलाउ है। विधत का मेन फंक्शन क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सब फंक्शन है। और बूटी कैसे बटेगी? विधत डिसाइड करेगा। कुछ भी होगा, लड़ाई करनी, विधत डिसाइड करेगा। पर मेन जो आपसे पूछा जा सकता है सभा समिति है, और आपको ये भी पता होना चाहिए विधत भी एक तरह की कमिटी है जो वेरियस रोल प्ले कर रही है। और एक क्या है? जन। अब जो ये वर्ड जन है, हमने जन यूज किया था ना ट्राइब में, जन इज नॉट पर्टिकुलर एरिया, जन इज ए ट्राइब, बिकॉज मूव हो रहा है। तो व्हेन यू आर सेइंग कि पर्टिकुलर जन, पर्टिकुलर ट्राइब, लाइक एग्जांपल कुरु ट्राइब, कुरु ट्राइब इज देयर, but no particular area will be associated with the Kuru tribe. Kuru tribe जहां चली जाएगी वही उसका घर होगा, शेर जहां चला जाएगा वही उसका एरिया होगा, समथिंग लाइक दैट। पर जब हम बाद में जनपद, महाजनपद पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि पर्टिकुलर एरिया में दे आर देयर। समिति, आई विल रिपीट, जस्ट वेट। इट मीन्स by the time after the end of ऋग्वेदिक period, when we will move to the 1000 BC के बाद वाला, that time आपका घर कंप्लीट हो गया, आप रह रहे हैं, तो फिर टेरिटोरियल आइडेंटिटी विल स्टार्ट इमर्जिंग। समिति क्या है? कॉमनर्स। ट्राइबल असेंबली, ऑल ट्राइब विल बी मेंबर ऑफ समिति एंड द मेन फंक्शन ऑफ समिति इज टू इलेक्ट किंग। सभा, कमिटी ऑफ एल्डर्स एंड ब्राह्मणास। विधत, पॉलिटिकल कमिटी, पॉलिटिकल असेंबली, और असेंबली सिंपल लिख लो, असेंबली यूज टू फंक्शन, यूज टू परफॉर्म वेरियस सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल फंक्शन, बस इतना काफी है। एंड वुमेन्स वर मेंबर्स ऑफ दीज समितिज, कमिटीज, असेंबलीज ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। खत्म हो गया। अब किंग इज जस्ट ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, no special position. You will act as a king only when we will go to war or we have to decide some important function. Rest of the time आओ खेत जोतो। So what is the main function of king? To lead the tribe during a war. What is the main function of king during this period? समझ गए? एंड किंगशिप वॉज नॉट हेरिडिटरी, बिकॉज हमारे पास क्या है? समिति। समिति विल, आप कल नहीं थे ना? समिति क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े। लास्ट टॉपिक ऑफ रिलीजन। एक्चुअली जो हमने शुरू में देखे वही सबसे बड़े थे, अब तो बहुत छोटे छोटे। रिलीजन क्या है? सबसे पहले पॉलीथिस्ट, फिर नेचर वर्शिप। स्पेसिफिक नेचुरल फोर्सेस वर गिविंग ह्यूमन फॉर्म, यानी इंद्र, इंद्र पहले लड़ाई का देवता है, फिर इंद्र बारिश का देवता है,
हवा का एक देवता है, पानी का एक देवता है। तो नेचुरल फोर्सेस को यू आर गिविंग ह्यूमन फॉर्म, डिवाइन नेचर। तो नेचर वर्शिप आप कर रहे हैं, पेड़ की पूजा कर रहे हैं, गाय की पूजा कर रहे हैं, नेचर की हर चीज आपके लिए डिवाइन है। पॉलीथिस्टिक, पॉलीथिस्टिक मतलब हैविंग मोर देन वन गॉड, मेनी गॉड्स। और इस टाइम पीरियड के इंपॉर्टेंट गॉड्स कौन है? इंद्रा, वरुण और अग्नि। अग्नि का मतलब फायर, वरुण वाटर, और इंद्रा क्या है? इंद्रा शुरू में है नहीं, हाँ, वॉर, गॉड ऑफ वॉर। और बाद में कौन हो गए? रेन एंड थंडर। शुरू में क्या है ये? गॉड ऑफ वॉर। जब लड़ाई करोगे तो किसका आह्वान करोगे? इंद्र। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड किसका रोल है? यज्ञ एंड सेक्रीफाइस। और ये जो यज्ञ और सेक्रीफाइस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं रिलीजन में, क्योंकि आप इसके थ्रू किससे कनेक्ट कर रहे हो? गॉड से। किसके थ्रू? वॉट एवर यू ऑब्लिगेशन, आप जब यज्ञ करते हो तो अग्नि में कुछ डालते हो, क्यों डालते हो? व्हाट इज द पर्पस? यू आर गिविंग दैट थिंग टू फायर बिकॉज यू डोंट डायरेक्टली रीच टू गॉड। So whatever you will give to Agni, Agni will directly transfer that thing to God. This is the role of Agni. That is why after your death in Hindu mythology, Hindu culture, आपको क्या लगाया जाता है? आग। Why? Because सीधा नहीं, भगवान के पास तो गए, पहुंचाना भी तो है आप। इट इज लाइक ए व्हीकल टू यू। आपको क्या चाहिए? ट्रेन चाहिए ना, प्लेन चाहिए नहीं, क्या चाहिए? अरे सपोर्ट नहीं, ऊपर क्या, रॉकेट चाहिए टाइप ऑफ थिंग। इसको मैं, अरे ग्रेविटी क्रॉस करनी है ना, अरे नहीं करनी। मेरा जोक बस मैं बोलता हूँ वहीं खत्म हो जाता है। मैं कहाँ पे हूँ? हाँ, और क्या है? आई वाज सेइंग समथिंग। रिलीजन इज मेटलिस्टिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आप भगवान से जो मांगते हो वो आपका नेचर दिखाता है। कोई क्या मांगेगा भगवान से? लंबोर्गिनी दे, मांग सकते हो, घर दे दो। तो अगर आप ये चीज मांग रहे हो तो इट इज मेटलिस्टिक। तो इस टाइम पीरियड पे क्या मांगा जा रहा है? केटल, वेल्थ। बेटा आप ये नहीं कह रहे प्लीज मुझे हेवन भेज दो, नो, यू आर नॉट आस्किंग फॉर हेवन बिकॉज आपको नहीं पता बात क्या है। तो यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। तो इस रिलीजन इस टाइम पीरियड का क्या है? मेटलिस्टिक, बिकॉज यू आर गोना आस्क मेटलिस्टिक थिंग टू गॉड। खत्म, ऋग्वेदा ओवर, ऋग्वेदिक पीरियड ओवर, खत्म। बढ़े आगे। यज्ञ, यार वो इंग्लिश में है ना, यू डोंट नो, यज्ञ नहीं बोलते वो लोग, समथिंग लाइक दैट। यूपीएससी में भी यज्ञ वर्ड आएगा, यज्ञ नहीं आएगा। तो यज्ञ एंड सेक्रीफाइस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और पॉलिटी में एक पॉइंट और है, क्योंकि हमने देखा नेसेंट स्टेज है स्टेट का, स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर स्टेट क्या चाहिए? पॉपुलेशन सोवरेनिटी प्लस टेरिटोरियल बाउंड्री, नॉट टेरिटोरियल बाउंड्री। एट द सेम टाइम बहुत ही सोसाइटी का लेवल बहुत ही नेसेंट स्टेज पे, दैट इज वाई कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी क्या है? नेसेंट स्टेज में है। ओनली 3 ब्यूरोक्रेट्स वर मेंशन्ड, ग्रामीणी, पुरोहित एंड सेनानी टाइप ऑफ थिंग। समझ गए? ग्राम का हेड कौन है? ग्रामीणी। यज्ञ को एक्सप्लेन नहीं करना, यज्ञ मतलब यज्ञ है, उसमें फायर जलाओगे और सेक्रीफाइस दोगे और क्या मांगोगे? मेटलिस्टिक थिंग। क्लियर परी? बता रहा हूं ना मैडम, आ रहा हूं। कुल, हमने बोला कुल, कुल का हेड कुलापा, ग्राम का ग्रामीणी। अच्छा वो आप उसका पूछ रहे हो, ग्रामीणी, पुरोहित, सेनानी, ओनली 3। पेट्रियार्कल, जेंडर न्यूट्रल बोल देता तो जो ताकतवर होता वही घर पे कब्जा कर लेता।
सकते हो। चलो बहुत बढ़िया। अब अभी हमारे पास हाँ आधा घंटा आराम से हो जाएगा। नाउ माई नर्व्स आर, और मैं तो साल 10 मिनट लेट भी आया था, तो आई कैन 10:40, बहुत टाइम है। अब खुशी खुशी सवाल पूछना। कहाँ पे था मैं? 4 कवर हो गए अभी। अब बताओ, अब मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, डाउट हो तो पूछ लो, कवर हो गया है। मैडम पुरोहित क्या करते हैं? सेनानी क्या करते हैं? मैं सिर्फ देखो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वोट आई एम ट्राइंग टू से, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वो मेरा पॉइंट क्या है राशि जी, आप सुनिए पॉइंट क्या है। That I am trying to prove. So I am saying as a proof, as a proof to support my point. आपको इंटरव्यू में आपने कहा no no bureaucracy was only in nascent stage during the Rigvedic period. Then the next question will be how you can say that. You will say sir only 3 bureaucratic posts या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या ओनली 3 ऑफिसर्स, ओनली 3 ऑफिसर्स वर मेंशन इन ऋग्वेद। या और बचना चाहते हो, 3 बोल दोगे तो 3 का नाम पूछ सकते हैं। बचना चाहते हो ओनली वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल वर रिफर्ड एज परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन एज ब्यूरोक्रेटिक। अब अगर आपको नहीं आता और पूछ दिए व्हाट आर दोस फंक्शंस, व्हाट वर दोस फंक्शंस, क्या बोलोगे? एट दिस टाइम सर सॉरी आई कुड नॉट। सबको सब थोड़ी याद होता है, भूल जाते हैं। सर आप प्यार से पूछोगे तो याद आ जाएगा, क्या पता। वाइवा दिए हो ना सब स्कूल्स में, भूल जाते हो, नादान बच्चे हो, डर जाते हो। समझ गए? लिख लिया सर सभा ओनली हेड ब्राह्मणास। क्या मैंने ऐसा बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया? ब्राह्मणास प्लस एल्डर्स। और ब्राह्मणास मतलब, ब्राह्मणास का मैंने क्या मतलब बताया था? इंटेलिजेंट पीपल, जिनके पास विजडम है, नॉलेज। नॉलेज और विजडम में अंतर है, क्या है? इथिक्स वाले पढ़ाएंगे। मैं टाइम कम है मेरे पास, कहाँ हूं मैं? हाँ लेटर वैदिक, देखो लेटर वैदिक एज में सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुआ क्या है? हमने नियोलिथिक में क्या देखा? सेडेंटरी लाइफ बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ। तो दिस इज द कॉमन फीचर जो चेंज कर रहा है आपको अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अब जो भी चीज चेंज मीन्स नो ट्राइबल और अदर रेस वर देयर, आई वाज आस्किंग दैट सर। I am not getting your point कृति, if you please specify the specific question I will answer। मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या पूछा। No tribal और other race were there, I was, मैं समझा नहीं प्लीज। ब्राह्मणा भी तो ट्राइब्स ही हैं, तुम अभी की ट्राइब्स सभा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ही तो नहीं समझा आपका मैडम। सभा एक ट्राइब है, कौन है? ट्राइब। ये अभी की ट्राइब से मत समझो जो पिक्चरों में तुम्हें ट्राइब दिखाते हैं ना। ट्राइब मतलब आपका एक वंश टाइप की चीज है, जिसमें एक ही फैमिली के ट्राइब के लोग रह रहे हैं। उस ट्राइब में एक हमने सभा बनाई, इस सभा का मेंबर होगा कौन? इसके जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जो इंटेलिजेंट ब्राह्मण्स हैं, बिकॉज दे विल एडवाइज द किंग कि बेटा इस नदी में अब पानी ज्यादा आने वाला है, लेट्स मूव द टेंट्स। आपको कैसे पता होगा? नहीं हो सकता ना सब कुछ, क्योंकि 30 साल पहले पानी आया था, तब आप नहीं थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे। मैं एग्जांपल देना चाहता था कुछ एलिफेंट वाला, पर मुझे आप 2 सवाल और पूछ देंगे एलिफेंट का, एनवायरमेंट वाले पढ़ाएंगे।
सेडेंटरी। अब ये कैसे पता लगा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है? बाय द लिटरेरी एविडेंस एंड द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इस टाइम के लिटरली एविडेंस में एग्रीकल्चर का बार बार जिक्र है, मेंशन है बार बार, which was not the case during the time of Rigvedic period. At the same time, during in the literary evidence of this period, the people associated with the agricultural activities were treated favorably. मतलब अगर कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा है तो इन द लिटरेरी एविडेंसेस उनको क्या बोला जाएगा? आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। बिल्कुल मजा आ गया ऐसा वाला। इट मीन्स क्या आपको पता लगता है? अगर आप 300 साल बाद आपने आज किताब लिखी, 300 साल बाद तो आप रहोगे नहीं, मैं भी नहीं रहूंगा, कोई और वो किताब को पढ़ रहा है, आप किसकी प्रेस कर रहे हो, किसकी कम प्रेस कर रहे हो? इट विल शो द रिफ्लेक्शन ऑफ यू। बट एज ए सोसाइटी होल अगर हम कोई बुक लिख रहे हैं और उसमें बता रहे हैं ये अच्छे लोग हैं, यही काम करना चाहिए, ये खराब काम है नहीं करना चाहिए, इट मीन्स एज ए सोसाइटी यू आर अप्रिशिएटिंग सम फैक्ट, favorably treating, which was earlier they were doing with the pastoral activity. Itself shows the changing nature of the society. If you are treating favorably a particular thing, it means you want them to practice that thing only. So पहले हम देखते हैं सोसाइटी, सोसाइटी में क्या क्या चेंज आए। तो सोसाइटी में सबसे पहले पावर्स ऑफ कुलापा ये बढ़ गई। आपके पिताजी अब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, उनके पास ज्यादा पावर है, अब आपको पनिशमेंट भी किया जा सकता है, बस यही लिखना है। पावर्स ऑफ कुलापा बढ़ गई, ठीक है। और सोसाइटी में क्या हुआ? पहले सोसाइटी कैसी थी? इगेलिटेरियन। अब क्या हो गया? इगेलिटेरियनिज्म डिक्रीज। पहले इक्वल्स ग्रुप्स थे ना सोसाइटी में, अब फेवरेबल कुछ ग्रुप हो गए, सम ग्रुप्स ऑक्यूपाइड मोर पावर या सम ग्रुप्स हैव गेन्ड मोर पावर विसेविस अदर्स। कौन ग्रुप है वो? क्षत्रिय एंड ब्राह्मणास became more powerful. How? We will see in the polity, है ना। स्टिल प्राइमरी रिलेशनशिप अभी भी इंपॉर्टेंट है। मैरिज अभी भी वैसी है, कैसी? पोस्ट प्यूबर्टी, और पोस्ट प्यूबर्टी का मतलब 18 साल नहीं होता, पोस्ट प्यूबर्टी मतलब बचपन में नहीं हो रही है बस, पर अभी पहले से थोड़ा सा डिक्रीज है। पोजीशन ऑफ वुमेन भी थोड़ी सी डेटोरिएटेड हो गई है। सोसाइटी में ही लिखेंगे, पोजीशन ऑफ वुमेन वर ऑल्सो विटनेस सम डिक्लाइन। पोजीशन ऑफ वुमेन में नहीं है, लिख लो, पोजीशन ऑफ वुमेन ऑल्सो विटनेस सम डिक्लाइन। एजुकेशन पहले जैसी है ओरली, ठीक है, अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है टॉप 3 में, लिख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सोसाइटी में, अब आगे बढ़ जाओ, सोसाइटी में अब विटनेस हुए हैं जो पहले नहीं थे। सबसे पहला गोत्रा सिस्टम। गोत्रा सिस्टम इमर्ज्ड कब? लेटर वैदिक, ठीक है। गोत्रा सिस्टम क्या है? गोत्र कहां से बना है? काऊ से, काऊ, गोत्र मतलब के आप जब एक फैमिली मेंबर थे तो आप अपनी गाय एक जगह बांधते थे, कॉमन केटल पेन, फिर आप की फैमिली बढ़ती गई। तो हाउ टू नो दैट यू आर फ्रॉम द सेम फैमिली? बाय नोइंग यू आर शेयरिंग द सेम गोत्र। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे वर फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ गोत्रा एक्सोगेमी व्हाइल मैरिंग, दे वर नॉट मैरिंग विद इन द सेम गोत्र। तो गोत्रा सिस्टम इमर्ज, और क्या फॉलो कर रहे थे? मैरिज आउटसाइड गोत्रा, ऐसे लिख, ज्यादा याद रहे। समझ गए? बस इतना ही काफी है आपके लिए। एक और चीज इमर्ज हुई इस टाइम पे, कौन सा? आश्रम सिस्टम।
आश्रम सिस्टम सुने होंगे ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो आश्रम सिस्टम मीन्स, सिस्टम तो मैं यूज नहीं करूंगा, आश्रम का जो कॉन्सेप्ट है इट स्टार्टेड इमर्जिंग, इट इमर्ज ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड विच वाज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड को क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। सो अगर क्वेश्चन आता है तो वी विल नो कि आश्रम सिस्टम कब इमर्ज हुआ, लेटर वैदिक। अब आश्रम सिस्टम में 4 आश्रम है, पर इस लेटर वैदिक पीरियड में ओनली 3 आश्रम, कॉन्सेप्ट आ रहा है अभी 3 आश्रम, चौथा आश्रम अभी नहीं है। द रेफरेंस कहां मिलेगा, छंदोगया उपनिषद। आश्रम सिस्टम बता रहा हूं, 3 आश्रम्स। अर्ली पहले कितने आश्रम है, अर्लियर ओनली 3 आश्रम्स। रेफरेंस, अर्लियर रेफरेंस छंदो गया उपनिषद। और लेटर वैदिक पीरियड, ओ सॉरी पोस्ट वैदिक, पोस्ट वैदिक क्या होता है 600 बीसी के बाद, इसमें डेवलप हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ 4 आश्रम्स। और इसका अर्लियर रेफरेंस है जबला उपनिषद। ये वैसे हम आर्ट एंड कल्चर में देखने वाले थे, पर लिख लो। हाँ क्या हुआ, समझ में आ रहा है। मैरिज ओनली, क्या मैरिज ओनली, मैरिज ओनली विद इन, मैरिज ओनली आउटसाइड गोत्रा। गोत्रा में शादी विद इन गोत्रा नहीं करेंगे बिकॉज यू आर फ्रॉम द सेम फैमिली, भाई बहन टाइप थिंग। उस वो ऐसा वो कह रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। छंदोगया उपनिषद में रेफरेंस है, अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ 3 आश्रम सिस्टम, ऐसा माना गया है, ये पुराना है डिफरेंस। और इसका जबला उपनिषद में 4 आश्रम सिस्टम का। ये कौन सा है, पोस्ट वैदिक, मतलब इसके बाद का वर्ण। हो गया, यहां तक हो गया मैडम। संन्यास नहीं है, बाकी 3। संन्यास मतलब अब आपका किसी से, वानप्रस्थ में तो ये जंगल गए फिर आ गए, जंगल गए, पास में ही जंगल, घर के पास ही तो जंगल है, गांव के पास में पेड़ लगे हुए हैं, हो गया। वानप्रस्थ मतलब, ओ सॉरी संन्यास, किसी से कोई लेना देना नहीं है। संन्यास इज द 4th एडिशन। अब इतना इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इट विल नॉट बी आस्क्ड, और अगर होगा भी तो हम क्वेश्चन जो आपको पेपर देंगे उसमें वहां कर लेंगे, यहाँ के लिए जरूरी नहीं है। और मैं क्या कर रहा था, हो गया ये तो हो गया, कुछ बचा है। हाँ, अभी भी वर्ना सिस्टम जो है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वर्ना, एक्विजिशन ऑफ वर्ना ओनली बाय बर्थ, मैरिज विद इन वर्ना, वर्ना नॉट, यू कैन नॉट चेंज वर्ना, वो सब अभी नहीं है सोसाइटी में, इट इज स्टिल वेरी फ्लेक्सिबल। यू कैन चेंज योर वर्ना बाय चेंजिंग योर प्रोफेशन, नोट्स में है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी। पॉलिटी में क्या हो गया, अब क्योंकि जो राजा है वो पोजीशन क्या हो गई, प्रेस्टिजियस हो गई, और कुछ जगह इन सम ट्राइब्स हेरिडिटरी भी हो गई, सब ट्राइब्स में नहीं है। दैट इज वाई जब हम गुप्ता बुद्धा पढ़ेंगे इन महाजनपदा पीरियड, सम अभी भी क्या है, गण परिषद, मतलब अभी भी क्या है, इलेक्शन है, कुछ जगह राजा है, कुछ जगह इलेक्शन है। तो कुछ जगह क्या हो गया, हेरिडेटरी हो गया, राजा की पोजीशन प्रेस्टिजियस हो गई, और क्या हो गया, ब्यूरोक्रेसी इमर्ज
टैक्सेशन इमर्ज्ड, बली, और क्या है, अब किसके लिए फाइट हो रही है, फाइट फॉर लैंड, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी इज मोर बेटर वर्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट जना यानी ट्राइब किस में कन्वर्ट हो गए, जनपद, पद मतलब टेरिटरी एसोसिएट हो गई। अब आप एक ही जगह रह रहे हो क्योंकि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्रीकल्चर, जो हम इकोनॉमी में देखेंगे, वी हैव ना 20 मिनट्स। तो फाइट फॉर टेरिटरी, फाइट फॉर, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? ये सब हो गया। अब क्योंकि ये है, समिति का काम क्या था, हम दो देख रहे हैं ना, सभा और समिति। समिति का काम क्या था, इलेक्शन। जब इलेक्शन ही नहीं रहा तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी सभा समिति में से, सभा की बढ़ेगी, समिति की, हालांकि शुरू में दोनों इंपॉर्टेंट है। सभा एंड समिति वर टर्म्ड एज द ट्विन डॉटर ऑफ प्रजापति ब्रह्मा। कहा, अथर्ववेदा। अथर्ववेदा क्या कहता है, लिख लो, सभा एंड समिति वर टर्म्ड एज द ट्विन डॉटर ऑफ प्रजापति इन अथर्ववेदा, बट Sabha and Samiti were referred, termed as the twin daughter of Prajapati in Atharvaveda. अथर्ववेद। आगे फुल स्टॉप लगा के लिखो, ड्यूरिंग द टाइम और लेटर वैदिक एज ascendancy of Sabha, during the time of later Vedic age, ascendancy of Sabha was witnessed vis a vis Samiti, या in comparison to Samiti. During the later Vedic period, ascendancy spelling लिखूं, ascendancy of Sabha was witnessed in comparison with Samiti. यानी कि अगर किसी की एसेंडेंसी होगी तो मतलब उसका वैल्यू, उसका लेवल बढ़ जाएगा कंपैरिजन टू अदर थिंग विच इज समिति। प्रेस्टिजियस हो गया किंगशिप, बिकॉज अब किंग क्या है, किंग अब तो पूरे राष्ट्र का राजा हो गया ना। कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र ऑल्सो इमर्ज्ड ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, दैट इज व्हाई जना गॉट कन्वर्टेड इनटू जनपदा। जन मतलब ट्राइब, जनपदा, what is the meaning of janpada, area where that tribe is living. Earlier jana is just tribe, they can go and live anywhere. Now janpad, pad, area where the tribe is living. भोगा और बलि, बलि क्या थी शुरू में, वॉलंटरी ऑफरिंग, ठीक है। भाग है, सॉरी, भाग भी और भोगा एक ही बात है, भाग भोगा, भाग मतलब हिस्सा, टैक्सेशन। चलो, भोग मतलब भी होता है ना ऑफरिंग। तो भगवान को कई लोग भोग नहीं देते, भगवान जी मेरे को प्रॉफिट देना 10% आपका, भोग मान लो, भागा मांग लो, करते हैं ना कई लोग। तुम टीचर को हिस्सा देना सिलेक्शन होने। चलो कहाँ पे थे हम, ये हो गया ना हमारा, सोसाइटी हमने कर ली, पॉलिटी हमने कर ली, नाउ वी विल मूव टू इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या चेंज आया, पेस्टोरिज्म से आप किस पे चले गए, एग्रीकल्चरिस्ट पे। तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आ गई, वो हमने लिख लिया था ना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल सोसाइटी में, ठीक है। अब क्योंकि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आ गई, सो और पहले, अच्छा मैंने एक पॉइंट बताना मैं आपको, क्या अर्ली वैदिक बताना क्या भूला है, इंस्टा इन्फॉर्मेशन, अर्ली वैदिक पीरियड, सॉरी वैदिक पीरियड जो अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि ऋग वैदिक पीरियड में आप कहाँ रह रहे थे, यू वर लिविंग इन द सप्त सिंधव एरिया।
सप्त सिंधव एरिया मीन्स पंजाब, एरिया ऑफ 7 rivers यानी इंडस वैली एंड एसोसिएटेड एरियाज। यू आर नॉट लिविंग इन द गंगेटिक वैली। लिखना चाहो तो लिख लो। हाँ मैं लिख के बता रहा हूँ मैडम। सप्त मीन्स 7, कब रह रहे हो ये? अर्ली वैदिक एज। एक और पॉइंट लिख लो, Gangetic Valley was not the core area of early Vedic age. Ganga was mentioned in Rig Veda only once. ठीक है। अब क्या हो गया? लेटर वैदिक एज में क्या हुआ? आर्यंस कहां चले गए? अब मूव्ड टू गंगेटिक वैली। गंगेटिक वैली में क्या है? फर्टाइल प्लेन है, पेरेनियल रिवर्स हैं, बारिश अच्छी होती है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज अच्छे हैं। क्या हुआ? खेती ज्यादा अच्छी कर सकते हो, फर्टाइल लैंड। दैट इज वाई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 500 ईयर्स, 400 ईयर्स है ना, 1000 से 600 बीसी, ओवर ए 400 ईयर्स ऑफ टाइम, मतलब लेटर 1000, 800, 900, 800, 700 आते आते क्या हुआ? सरप्लस प्रोडक्शन अचीव हो। सरप्लस प्रोडक्शन अचीव होने से क्या होगा? ग्रोथ इन आर्ट एंड क्राफ्ट्स, ग्रोथ इन ट्रेड। तो न्यू कम्युनिटी इमर्ज किसके में? श्रेणी। श्रेणी मीन्स ट्रेडर्स। आपको नोट्स जो मैंने दिए मिलेंगे जब, ये वाले नहीं, मटेरियल वाले, उसमें समझ में आया? यहां तक आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं ना? हाँ बताइए मैडम। 2 मिनट। हाँ बताइए। हाँ ये अर्ली है, ये लेटर। आर्यन मूव टू गंगेटिक वैली। चले आगे, हम भी चले। कॉनमिक में, कॉनमिक पढ़ रहे हैं ना हम। एग्रीकल्चर आ गया। यूज ऑफ आयरन स्टार्टेड। जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले कहाँ यूज होती है? पायलट प्रोजेक्ट। क्या बोले? अरे नहीं, हाँ राजा स्टेट यूज करता है। कहाँ क्या होता है ना, सबसे पहले कहाँ रिसोर्स यूज हुआ है? आयरन सबसे ज्यादा पहले कहाँ यूज हुआ? आपके जो बो और एरो से उसमें लगाने। तो आयरन का यूज स्टार्ट हुआ, पर इनिशियल फेज में अर्लियर मोर यूज इन मिलिट्री पर्पस, और बाद और स्मॉल लेवल पे कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर यार। तो शुरू में एग्रीकल्चर में कम यूज है, और कहाँ ज्यादा यूज है? मिलिट्री वेपन्स में। प्लोशेयर का एग्जाम्पल जो जखेरा से मिला है, प्लोशेयर, आयरन प्लोशेयर 800 बीसी है इसमें, है ना। जखेरा जगह है जहां से अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ आयरन प्लोशेयर मिला है एक, पर ज्यादा क्या मिले हैं? मिलिट्री वेपन्स। समझ में आ रहा है? Because of growth of agriculture, because of growth of sedentary lifestyle, because of growth in production, because of growth of iron, मतलब use of iron, क्या डेवलप हुआ? सेकेंडरी इकोनॉमिक, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इससे क्या होता है? नाउ यू हैव मोर थिंग्स टू ट्रेड। ट्रेड में भी ग्रोथ हुई। डिफरेंस देख रहे हैं ना हम, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज का डिफरेंस कैसे बताओगे? तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ ज्यादा है? लेटर वैदिक एज।
समझ में आ, हमने सोसाइटी देखी, पॉलिटी देखी, अब इकोनॉमी देख रहे हैं। यहां तक आ गए। अब क्या है, बताया ना, भागा नहीं बताया, वहां बता दिया ना, पॉलिटी में टैक्सेशन वहां बताया था ना। अब देखो अभी भी क्या नहीं है, सॉरी, करेंसी अभी भी नहीं है, अभी भी क्या है, और एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद और क्या है, पहले क्या हो रहा था, केटल की रेड हो रही थी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था विद इन द ट्राइब। अब नहीं ऐसा होगा, अब जो कॉमनर से वो भाग दे देगा और राजा उसको क्या कर लेगा, रख लेगा, सेना वेना में बांट देगा और पुरोहित को बोलेगा मेरे लिए यज्ञ करो, मैं सिर्फ तुम्हें दूंगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, या फिर now king is taking resources from the commoners in the form of taxation but not distributing it in the whole tribe but only distributing it to purohits. So some form of reduction इसमें है, ठीक है। The point is, मैं इसमें पढ़ देता हूं, आपको नहीं समझ आया तो पूछना। During sacrifices, gifts were no longer given to the entire tribe, which was the case earlier. Rather, the chief gave gifts to the brahmanas who performed sacrifices for him. That is why I have used the point during the society ascendancy of two varnas, Kshatriyas and Brahmanas. Brahmanas ascendancy because the major portion of gifts which the rulers was giving during the sacrifices were appropriated by Brahmanas, and majority of resources and power with the emergence of state is extracted या is appropriated by क्षत्रियास। कॉमनर्स तो टैक्सेशन दे रहे हैं, तो उनका स्टेटस समझ में। दिस इज द रीजन दैट व्हेन बुद्धा केम, majority of trading and agricultural community shifted towards Buddha because they were looking for more favorable terms in the hierarchy. देखो हर चीज लिंक है, वो हम पर डिटेल में वहां देखें, वो चीज हम नहीं, मोबिलिटी है ही नहीं, हमें ऊपर चाहिए भैया, मोबिलिटी क्या है हम यहाँ पे तो लड़ाई है बस। टैक्सेशन हमने देख लिया, हाँ हमने, पर अभी भी सेल ऑफ लैंड नहीं हो रहा है, मैं वहां भी देखा था। यहाँ आप देखो शुरू में, क्योंकि आप जब भेड़ बकरियां चरा रहे हो और घूम रहे हो एक जगह से, तो सारी जगह किसकी है, ट्राइब की है, खरीदना बेचना कुछ नहीं है। अब आप रुक गए हो, तो पहले जो जगह ट्राइब की थी, अभी भी आप खेती शुरू में कैसे करोगे, सब गांव की है, जितना होगा आपस में बांट लेंगे, क्योंकि गांव में सब लोग क्या है, फैमिली मेंबर्स हैं। धीरे धीरे सम पीपल विल अप्रोप्रिएट मोर लैंड एंड देयर इकोनॉमिक पावर विल इमर्ज, असेंडेंसी देखी जाएगी। बट स्टिल इन दिस एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ सेल ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड वाज, तुमसे क्यों खरीदूं, जंगल में जाऊंगा, 4 पेड़ काटूंगा, खेत बना। अरे यही हुआ यार, जमीन कब खरीदोगे, जब कमी होगी। दिल्ली में अगर सब जगह खाली पड़ी है तो मुझसे या किसी से क्यों खरीदोगे, बोले वहीं खाली है वहां बना लो। अभी स्टेट ने कोई पट्टा देना सिस्टम तो चालू नहीं करा है ना, सब जमीन, राजा के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, राजा तो कहेगा बनाओ बनाओ, आप उगाओगे तो मुझे प्रॉफिट, शेयर, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज बच गई, रिलीजन। अर्ली वैदिक रिलीजन और लेटर वैदिक रिलीजन में अंतर क्या है, सेम सेम क्या है, अभी भी नहीं। सबसे पहले हमने क्या कहा था, सॉरी, नेचर वर्शिप अभी भी है सेम, पॉलीथिस्टिक अभी भी है, पर क्या चेंज हो गए, चीफ गॉड, वहां जो चीफ गॉड थे, यहाँ जो चीफ गॉड है अलग है। अब यहाँ चीफ गॉड क्या हो गए, रुद्र यानी कि शिवा,
विष्णु और ब्रह्मा। अब ये ट्रिनिटी ये है, पहले मेटलिस्टिक था रिलीजन, अब क्या हो गया, स्पिरिचुअल। बिकॉज आपको क्या चाहिए, आप पूजा क्यों कर रहे हो, आप अभी भी क्या कर रहे हो, यज्ञ और सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो, मेरे को अगले जन्म स्वर्ग दीजो, नहीं अभी दे दीजो, अगले जन्म में राजा बनाइयो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, समझ गए, तो स्पिरिचुअल हो गया। अब और क्या अंतर है, यज्ञ और सेक्रीफाइस अब बड़े बड़े महंगे हो गए, कॉस्टली एंड एलोबोरेटिव। क्या हो गए, कॉस्टली प्लस। That is why when Buddha came and the heterodox sects came, they were opposing this costly and elaborative yagna and sacrifices, because in sacrifices they were asking for sacrifices of cattle, and cattle were required for the agricultural purposes, for the economic purposes, and these sacrifices will gonna affect the economic health of a person like you or me, commoners. ज्यादा तेज हो गया, जल्दी हो गया, तो यहां हमने हो गया एलोबोरेटिव, ये खत्म हो गया। अब एक टॉपिक में करवाना चाहता हूं, मेगालिथिक कल्चर, 2 मिनट में करवा दूं। मेगालिथिक, मेगा मतलब बड़ा, लिथिक मतलब पत्थर। तो मेगालिथिक कल्चर इज ए कल्चर विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूज ऑफ बिग बोल्डर्स, बिग स्टोन्स विच यूज्ड टू कवर द ग्रेव्स, ग्रेप्स नहीं ग्रेव, ग्रेव्स। आप मरोगे ना तब आपको लिटा देंगे, लिटाने के बाद अच्छे बड़े बड़े पत्थर से सजा देंगे, अलग अलग शेप। तो लिटा दिया, दफनाई आई ना। जितना बोल रहा हूं देखो, मेगालिथिक ये कैसे, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, मेगालिथिक कल्चर वो कल्चर है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ग्रेव्स के आसपास क्या मिलेगा, बस बस इतना ही समझ। बिग boulders used to cover graves of this in this culture, ये कल्चर है। यहां आप अगर मेगालिथिक हो तो आपकी पहचान क्या है, मैम डाउट आया आपको, बोल्डर्स, बोल्डर्स स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर से। अगर आप मेरे कल्चर के हो तो मैं आपके मरने के बाद पत्थर लगाऊंगा तो पता लगेगा आप और मैं एक ही कल्चर के हैं। हाँ अभी आ रहे हैं ना मैडम, अभी खत्म कहाँ गए, अंकिता जी आ रहे हैं। ये कहाँ मिलता है, साउथ में, दक्कन में। एविडेंस फ्रॉम महाराष्ट्र, एविडेंसेस फ्रॉम कर्नाटका, एविडेंसेस फ्रॉम तमिलनाडु, एविडेंसेस फ्रॉम आंध्रा। नॉर्थ इंडिया में टाइम पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1100 BC and went on for next 1000 years, but at some places evidences of this culture have been found even in 1st century AD and 2nd century AD. तो कहने का मतलब क्या है, for next 1000 to 1200 years this culture persisted. The information of this culture mainly came to us through the items found from these graves. इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है, ग्रेव्स से। ग्रेव्स से आइटम मिले हैं इस तरीके से कि आपको पता लगा इनकी पोट्री क्या है। ग्रेव्स से आइटम मिले हैं, आपको पता लगा ये ट्रेड करते थे कैसे, बिकॉज कॉइन्स ऑफ रोमन कॉइन्स भी मिले हैं। तो रोमन कॉइन्स पे अगर ठप्पा लगा हुआ है अगस्टस का, तो इट मींस अगस्टस के टाइम पीरियड में आए होंगे कॉइन। दैट इज व्हाई वी आर एबल टू असाइन ए टाइम पीरियड टू दिस कल्चर के ये अभी क्रिश्चियन सेंचुरी में भी। आयरन का एविडेंस भी आपको मेगालिथिक कल्चरल साइट से मिलता है। इट मींस यू केम टू नो दैट आयरन वाज यूज्ड ड्यूरिंग द मेगालिथिक कल्चर इन सदर्न इंडिया। समझ गए, बस इतना ही है। खत्म। ऑनलाइन कोई डाउट, प्लीज गो थ्रू दिस, ठीक है।
इसमें जो है हमने उससे ज्यादा कवर किया है, इसमें जो है हमने उससे ज्यादा कवर किया है. आई एम एक्सपेक्टिंग यू विल हैव सम डाउट्स. व्हाई? बिकॉज सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज एंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट माइट गिव यू सम कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट इन योर माइंड, विच इज नॉट द केस. हमने पढ़ा, क्लियरिटी है, पर इट इज नेचुरल थिंग टू कम कॉन्ट्राडिक्शन. सो प्लीज come prepared tomorrow to ask question. If you will not come prepared, you will not read these thing and material. Search states where evidence find. Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra, southern states downwards, महाराष्ट्र के नीचे. ठीक है, ओके, खत्म करें. मैं 5-10 मिनट बाहर हूँ. आपको पूछना, आपकी 11 बजे से है ना क्लास, तो आपको कुछ पूछना है जो मैंने कहा कि क्लास में नहीं लूंगा, आप बाहर पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. Sorry for coming late today.